my dear student of standard 9th, and welcome to the third part of the chapter number 2, where we are going to discuss the our remaining part, that is called the Russian Revolution. Straight away, let's begin. Hmm. So here it's a very small section, and I'm going through line to line. Now the Russian Revolution, it is also said to be the Bolshevik Revolution. Okay, how it got its name Bolshevik Revolution, that we are going to see later. See, Russian Revolution in 1970 is considered as an important event in the world history. Now what is the scenario basically? Like India is ruled by the Britishers, India is ruled by the Mughals. Same way, the Russia were ruled by the Tsar. Okay, here the spelling is written CZAR, and some people they might be written TSAR. So C and T are basically the silent word. So they ruled over 300 years, and they are the absolute monarch. That means उनको कुछ नहीं पड़ी है पब्लिक की, उनको बस रूल करना है पब्लिक से और लोगों से हैवी टैक्सेस लेना है. एंड पीपल in that time usually the farmers only, and their condition is very bad and very pathetic. Now the Russian had been oppressed and suppressed by the Tsar of Russia. The Russian Tsar who inherited the position were dictators and enjoy the uncontrolled rule over the people. So basically उनको पब्लिक के वेलफेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, एंड दे ओनली कंसर्न विद द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ एंड लाइक एनीथिंग. And people did not have any rights during this period, so no one can raise his voice. If anyone raise his voice against the government, put it in the jail, and their jails is in Siberia, where cold blooded ठंड से आप लोग मर जाओगे. The Tsar were so cruel and pitiless, so the people, that if anyone demanded for any rights, he was tortured and suppressed and severely punished and condemned to be sent to the bone-chilling death called Siberia. This uncontrolled oppressive Tsardom become a reason of the great poverty and suffering among the people. इसलिए कोई किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी जार के अगेंस्ट में एक वर्ड बोले, क्योंकि जैसे कोई अगर कंप्लेंट रेज करेगा, राइट्स की डिमांड करेगा, तो पकड़ के सीधा साइबेरियन जेल में. सो उनके टाइम पे यूजुअली बहुत ज़्यादा गरीबी थी, लोगों को लाइफ बहुत हार्ड थी एंड सफरिंग थी. The Russian farmer, laborer and peasant were not getting enough income despite of working very hard. They became poor. So usually क्या हो रहा है कि इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इतना मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, बट तो भी उनको उतने जितने उनका इनकम मिलनी चाहिए उतनी इनकम उनको नहीं मिल रही है. नाउ अब यहाँ पे तो आपको ऊपर से पता चला कि रशिया में क्या सीन्स हैं. रशिया वॉज अंडर द जार एंड फार्मर्स कंडीशन इज वेरी पुअर, एंड द किंग का जो एटीट्यूड था डेट वी कम टू नो विद द फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ द सेकंड पैराग्राफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गैपोन अ लार्ज रैली वॉज टेकन आउट इन द जार रेजिडेंट. सो जहाँ पे ये जार का महल था वहाँ पे एक रैली कंडक्ट की जाती है विंटर पैलेस. डेट याद आपको याद रखनी है, 22 जनवरी 1905 संडे. दिस पीपल वेर अनआर्म्ड, यानी निहत्थे लोग थे, उनके पास कोई वेपन नहीं थे, और ये जार के महल के आगे आए थे. दिस पीपल वेर अनआर्म्ड वाइल सम हैड द जार्स पिक्चर इन हिज हैंड विद द कैप्शन लाइक लॉन्ग लिव अ लिटल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया रिटन ऑन इट. सो आपको जो डिमांड करने आए थे बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था, एंड उनके हाथ में जार की लंबी उम्र की उन्होंने कामना की थी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं. अब देखते हैं जार क्या करता है. द जार आर्मी opened fire on these innocent people, because of which thousands of innocent people died on the snow in the Petersburg, where Tsar Palace is situated, turned red with blood, and this day is known as the Bloody Sunday in history. So friends, बहुत सैड इंसिडेंट हुआ. संडे का दिन था, 22 जनवरी 1905 डेट थी. जार के महल के आगे कुछ लोग अपने राइट्स के लिए आए, एंड जार ने क्या किया, सीधा उन पर फायर ओपन करवा दिया. ओके, अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया और उन्होंने शूटिंग लोगों को शूट करना स्टार्ट कर दिया. आई डोंट नो कितने लोग मरे, बट ऐसा कहा जाता है कि यूजुअली जनवरी मंथ एंड इन रशिया, तो वहाँ पे यूजुअली बहुत ठंड होती है, बर्फ़ गिरती है. सो वहाँ का जो पूरा वाइट
स्नो लैंड था वो पूरा रेड कलर में टर्न हो गया बिकॉज ऑफ द पीपल्स ब्लड, एंड इसीलिए इसको ब्लडी संडे भी कहा जाता है। हिस्ट्री में याद रखना, रशियन रिवॉल्यूशन में ब्लडी संडे किसको कहा जाता है, डेट यू आर सपोज टू बी नो। Around this time, a large number of Russians got provoked and become restless, and as the weakness of the Tsardom had become obvious when a small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russian Japan in war in 1904 and 5. अभी आप जो मेरी पूरी स्क्रीन देख रहे हो ना, जितनी स्क्रीन में मैं आ रहा हूँ, जितने फ्रेम में, सपोज कर लो ये जापान है, और वो जो पूरा किंगडम दिख रहा है ना, वो सपोज करो वो कि रसिया है ना। इतने छोटे से देश ने जार किंग बहुत बुरी तरह से हरा दिया। सो अब जार को कुछ करना पड़ेगा, लेट्स सी क्या करते हैं, है ना। नीचे से थर्ड लाइन, इन ऑर्डर टू pacify the angry Russian, announcement of to call the Duma Legislative Assembly, which had been called not for the year, was made. So कहीं ना कहीं राजा ने फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, एंड उनको जो मंचूरिया एरिया था वो उनको पूरा हैंड ओवर कर दिया। बेसिकली इट्स अ प्लेस जो जापान के पास में रसिया की लगती है, एंड एक तरफ उसके मंगोलिया है नीचे साउथ में, और एक नीचे चाइना भी है। सो वो पार्ट पूरा वो ले गया, एंड अब उसको लग रहा है कि पब्लिक का प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जार ने क्या किया, एक ड्यूमा फॉर्म की। ड्यूमा उसको कहेंगे कि इसमें जो कुछ खास अमीर क्लास के लोग हैं, उन लोगों ने एक थोड़ा सा डेमोक्रेसी का राइट दिया, उनको कानून बनाने का राइट दिया, उनको राइट्स दिया कि आप लोग पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ। तो इससे क्या पब्लिक के अंदर थोड़ा गुस्सा शांत हो, तो उन्होंने ये किया। ओके, इवेंचुअली 4 such dumas were called, but before it can take step to satisfy the citizen and it can be called off. Okay, so citizens को शांत करने के लिए बेसिकली ये स्टेप उन्होंने उठाया था। आई होप ये अभी तक आपको थोड़ा थोड़ा सिनारियो समझ में आ रहा होगा। सो सेकेंड पैराग्राफ में क्या है कि हमने ये देखा कि यूजुअली जो जार है उसने अनआर्म्ड लोगों पे फायरिंग का ऑर्डर दे दिया, इसको हम लोग ब्लडी संडे कहेंगे। एंड रसिया जैसे पावरफुल जो जार किंगडम है उसको एक छोटे से देश जैसे जापान ने ईजिली हरा दिया। इससे घबरा के राजा को लगा कि पब्लिक का प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कहीं ये मुझे उखाड़ ना फेंके, तो उन्होंने ड्यूमा फॉर्म कर लिया। एंड ये ड्यूमा एक तरह का जो रिच पीपल है जिनकी कनेक्टिविटी है लोगों के साथ, उनको इन शॉर्ट वो चाहते हैं कि पब्लिक का प्रोटेस्ट थोड़ा कम हो जाए एंड पब्लिक थोड़ी शांत हो जाए। आगे बढ़ते हैं। सी यहाँ पे लिखा है ऑन 8 मार्च 1907। सी जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था वो जो एक्चुअल में हुआ था वो हुआ था 1917 में। एंड ये 2 फेजेस में हुआ था। फेज़ 1 जिसमें हम लोग मार्च कवर करेंगे, और दूसरा अक्टूबर नवंबर में हुआ था। लेट अस सी यहाँ पर आपको पूरा फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो असली रशियन रिवॉल्यूशन है। अब तक ऊपर से हमने क्या पढ़ा कि रशिया अंडर द जार, लोगों की ये कंडीशन थी, जापान ने भी उसको हरा दिया, पब्लिक को शांत करने के लिए जार्स ने ये सब स्टेप्स उठाए। बट अल्टीमेटली अब क्या हो रहा है, इन ऑन 8 मार्च 1907 एन ऑपरेट्स वर्कर ऑफ पेट्रोगार्ड कॉल्ड ऑन स्ट्राइक। तो पेट्रोगार्ड उनका एक बड़ा शहर है, एंड यहाँ पे वो जो वर्कर्स थे, वैसे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी, लेकिन पेट्रोगार्ड्स के वर्कर्स ने स्ट्राइक की। स्ट्राइक क्यों की? बिकॉज उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो अनहाइजेनिक थी, उनके लिए कोई नॉर्म्स नहीं थे, उनकी कोई सेफ्टी नहीं थी। सो प्रोटेस्ट किया उन्होंने। द जार सेंट हिज ट्रूप टू कंटेन दिस इवेंट। सो अगेन जार तो भाई अपनी आर्मी के भरोसे ही है, एंड उन्होंने ट्रूप्स को भेजा। बट द आर्मी रिफ्यूज टू शूट दिस पीपल, है ना। आर्मी भी जो है उन्होंने फिर ये शूट करने से मना किया। एज ए रिजल्ट द रिवॉल्यूशन बिगेन आफ्टर द फॉल ऑफ द जारडम, द पावर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ केरेंस्की एंड लेट द मेंशेविक ग्रुप माइनॉरिटी। सी यहाँ पे फाइनली ये लोगों ने राजा को हटा दिया, और जो मेंशेविक ग्रुप है, मेंशेविक ग्रुप वहाँ का माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी मीन्स वहाँ के कॉमन पीपल हैं, जिसमें रिच पीपल और जो चर्च के लोग होते हैं, एंड जो ड्यूमा के ही मिनिस्टर थे इन शॉर्ट, ये लोग अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेते हैं, एंड कैरेंस के उनके लीडर होते हैं। एक्सेप्ट फॉर लेनिन, एवरीवन इन रशिया वाज हैप्पी विद द फॉल ऑफ जार। तो सभी लोग खुश थे कि चलो
जान छूटी, सो जार से हमको अल्टीमेटली फ्रीडम मिली। बट लेनिन बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेबर टू प्रोपागेट बाय द कार्ल मार्क्स। अभी जो लेनिन थे ना, ये कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, एंड ये क्या कहते हैं कि जो कंट्री है ना वो लेबर ही चलाएगा, एंड मैं उनका लीडर बन जाता हूँ। दो आई एम अ डिक्टेटर, बस मैं उनकी तरफ से मैं खड़ा हूँ। सो कहीं ना कहीं लेनिन ने ये एक नया कॉन्सेप्ट किया। लेनिन इंस्टिगेटेड द बोल्शेविक अगेंस्ट द मेंशेविक इन नवंबर 1917। सो उन्होंने एक और ग्रुप फॉर्म किया। मेंशेविक तो मतलब जो राजा के ही जो हाई क्लास फैमिली थी और जो चर्च के लोग थे, जो इन शॉर्ट राजा को ही मानते हैं। बट बोल्शेविक ग्रुप एक लेबर का ग्रुप है, एंड इनके पास मेजोरिटी भी थी। सो इन्होंने अपनी एक छोटी सी एक आर्मी थी, उसकी रेड आर्मी जिसको कहते हैं, उसने बहुत इजीली मेंशेविक लोगों को अपने अंडर में कर लिया, सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे कब्जा कर लिया, एंड एक तरह से मतलब उनके पूरे रूल को उखाड़ फेंका। एंड ये उन्होंने नवंबर 1917 में किया, डिक्लेयर अ फाइनल रिवॉल्यूशन एंड टू गेट द रेंस इन हिज हैंड। और फाइनली वहाँ से फिर सोवियत यूनियन का बर्थ होता है। दिस केम टू बी नोन एज द सोवियत बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, इसे हम लोग सोवियत बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहेंगे। एंड दस द 300 ओल्ड चारडम came to an end for the first time and Russia was without the Tsar। सो पहली बार ऐसा हुआ कि हिस्ट्री में अब रशिया का कोई किंग जार रहा नहीं है, जारडम का जो ज़माना था वो ख़त्म हो चुका है, एंड ऑल डेट। अब आपको समझ में आया, जब कंट्री के अंदर इतनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो तो अपने आप को वर्ल्ड वॉर से क्यों विड्रॉन कर लिया उन लोगों ने। ओके, सो लेनिन ने ही अपने आप को वर्ल्ड वॉर से विड्रॉन कर लिया था, एंड अपना ग्रुप फॉर्म कर लिया। ओके, कम्युनिस्ट ग्रुप फॉर्म किया, एंड आगे चल के बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, इन एंड इवन जो आसपास के जितने भी कंट्री हैं उन सब ने बाद में जाके कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो की। वेल, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की एक बात मुझे अच्छी लगती है कि इसमें सबके लिए इक्वल राइट थे। जैसे ही ये गवर्नमेंट फॉर्म होती है लेनिन की, मेंशेविक ग्रुप या बोल्शेविक ग्रुप के लोग हैं, सबके पास इक्वल राइट्स हैं। ओके, तो ये अपनी तरह की अच्छी आइडियोलॉजी है। बट यहाँ पर अगर जो टॉप ऑफिशियल लीडर्स होते हैं अगर वो सीरियसली कंटेंट से काम करें तो, लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पब्लिक की ज़्यादा चलती नहीं है। ओके, यू कैन सी चाइना में क्या हाल है, सब कुछ टॉप ऑफिशियल से डिसाइड करते हैं, पब्लिक अंदर क्या है, उनकी क्या कंडीशन है, किसी को कुछ पता नहीं है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द वर्ल्ड पीस एंड लीग ऑफ नेशन। सी राइट नाउ आवर वर्ल्ड इज कंट्रोल बाय द यूनाइटेड नेशन, है ना। यूनाइटेड नेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कंट्रियों में वॉर नहीं होने देता है। अगर होता भी है छोटा मोटा तो उसको तुरंत ही सॉर्ट आउट कर देता है, ताकि फ्यूचर में हम लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर को फेस ना करें। वैसे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फॉर्म हुआ था, बट बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुआ था। ओके, लीग ऑफ नेशन क्या था, लीग ऑफ नेशन का आइडियोलॉजी क्या थी, लीग ऑफ नेशन का आइडिया किसके दिमाग में आया, डेट वी आर ऑल आर गोइंग टू सी इन दिस स्मॉल एंड स्वीट पैराग्राफ। द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड पीस एक्सप्लेन एब्सोल्युटली नेसेसिटी ऑफ वर्ल्ड पीस टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो दुनिया के जितने भी देश हैं वो पूरे वॉर से अब थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, एंड एट एनी कॉस्ट दे वॉन्ट द वर्ल्ड पीस। फॉर दिस a need for an international organization was felt, यानी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इस दुनिया को थोड़ा कंट्रोल कर सके। सो इट इज़ नेसेसरी टू थिंक एक्टिवली एंड इमीडिएटली अबाउट द वर्ल्ड पीस। इसलिए वर्ल्ड पीस के बारे में बहुत सोचना तो बनता ही है। एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, सो रिमेंबर आफ्टर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब यूएसए के अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे, वुड्रो विल्सन had contributed substantially in the establishment of the League of Nations। so उनके ही ये एफर्ट्स थे जिससे League of Nations फॉर्म होता है। A 14 points suggested by the Woodrow Wilson were presented during the Paris Peace Process। so Paris Peace Process के अंडर में उन्होंने कुछ 14 पॉइंट सजेस्ट किए थे, एंड ये 10 जनवरी 1920 को हुआ, एंड लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुआ। अच्छा, लीग ऑफ नेशन का मेन एम्स क्या है, डेट वी आर सपोज टू सी। लेट्स गो अहेड। आई थिंक हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, सो ये आज का लास्ट टॉपिक है, एंड देन वी विल
गोइंग टू जस्ट रीड आउट सम क्वेश्चंस एंड बहुत जल्द मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आपके लिए ले आऊँगा. नाउ एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन. लीग ऑफ नेशन का मकसद क्या है, लीग ऑफ नेशन क्या चाहता है, बेसिकली डेट पार्ट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस 6 points. Number 1, to maintain international peace and security. So there should be a complete peace and security for the people of the world. Every nation has respect the unity and integrity of the other nation. तो सारे कंट्री एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखेंगे और अच्छी भावनाएं रखेंगे. टू गिव द पॉलिसी ऑफ वॉर, यानी वॉर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दिया जाए, वॉर को की पॉलिसीज़ को ही ड्रॉप कर दो. टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप जितने अच्छे होंगे कंट्रीज के बीच में उतना ही वर्ल्ड के लिए अच्छा होगा और कोई लड़ाई नहीं होगी. ओके. टू सॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली विद नेगोशिएशन एंड मेडिटेशन. सो यहाँ पे जो वर्ड आता है डिस्प्यूट्स, है ना, जो भी कंट्री के बीच में कोई अगर वॉर हो रहा है या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो वो नेगोशिएशन यानी बातचीत से एंड मीडिएशन यानी बीच में एंटर करके हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अभी इंडिया एंड चाइना का गलवान में इशू हो रहा था तो तुरंत ही मीडिएशन करने के लिए यूएसए आया था. बड़ा उन्होंने कहा था कि इफ चाइना एंड इंडिया एग्री देन वी कुड, हम लोग कोई रास्ता निकाल लेंगे. बट इंडिया ने बोल दिया हम देख लेंगे, इतने तो हमारे अंदर पावर है. एनी हाउ, पॉइंट नंबर 6, इफ एनी नेशन इग्नोर द लीग ऑफ नेशन एंड इट्स मीडिएशन इट वुड बी डिक्लेयर अ रिबेल नेशन, है ना, उसको बागी देश कहा जाएगा. एंड उसको फिर जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे उसको, उसका मतलब इकोनॉमिकली बहिष्कार हो जाएगा, वो कंट्री को अलग थलग कर देंगे अगर वो लीग ऑफ नेशन की बात नहीं मानता है तो बेसिकली हम देखने जाएँ तो लीग ऑफ नेशन एक सही सोच के साथ बना था. बट समहाउ इसके बारे में हम लोग लास्ट 2 लाइन्स में कुछ पढ़ लेते हैं. द लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश फॉर वर्ल्ड पीस, ये तो इससे तो हम लोग एग्री हैं. डिड नॉट मैनेज टू कीप अ कंट्रोल ओवर द इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ द सुपर पावर. सुपर पावर उस टाइम पे इंग्लैंड एंड फ्रांस था एंड उसको टक्कर देने के लिए जर्मनी था. सो इनकी जो महत्वाकांक्षाएं होती है, जो उनकी इच्छाएं थी, उनकी जो डिजायर्स थी, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाया, है ना. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन. सो अगर लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल रहता तो कभी हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखते ही नहीं. आगे हमारे चैप्टर्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हम लोग देखने वाले हैं ऑफकोर्स, बट लीग ऑफ नेशन का फेलियर ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता है. क्या क्या हुआ था डेट वी आर गोइंग टू सी इन द वर्ल्ड वॉर 2, जब हमारे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. एंड 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है. सो राइट नाउ यूनाइटेड नेशन परफॉर्मिंग सुपर टास्क. ओके. एंड अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो उसका हम लोग यूनाइटेड नेशन का फेलियर ही कहेंगे. ओके, गॉट इट. सो दिस आर सम क्वेश्चन आंसर डेट यू आर सपोज टू लर्न which we are going to discuss in our next session, in our upcoming sessions of course. Discuss the process of establishment of colony in western Europe, Asia and Africa. Okay, तो ये कॉलोनीज के बारे में बात करनी है आपको. एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, तो हम लोगों ने बेसिकली सारे फैक्टर्स देख लिए. मेंशन द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो भी आपको टेक्स्ट बुक में इजीली मिल ही जाएगा. एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रशियन रिवॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है. ओके. इवेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मेन इवेंट्स क्या थी, तो आपको वो पैराग्राफ आपको ऊपर वाला पूरा लिखना रहेगा. एम्स ऑफ लीग ऑफ नेशन, अभी जस्ट हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं, आपको बस वही शो ऑफ करने हैं. एंड गिव रीजन. द लीग ऑफ नेशन वॉज इस्टेब्लिश आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ताकि फ्यूचर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए लीग ऑफ नेशन फॉर्म किया गया था. वुड्रो विल्सन इज द पर्सन जिन्होंने 14 पॉइंट प्रेजेंट किए थे. ओके. 22 जनवरी 1905 इज नोन एज द ब्लडी संडे फॉर रशिया. उसे खूनी संडे कहा जाता है रशिया की हिस्ट्री में. वेल हमको पता है कि जार की पैलेस के आगे पीटर्सबर्ग में कुछ प्रोटेस्टर लेबर्स आते हैं और डिमांड करते हैं, और वो भी अनआर्म्ड तरीके से आते हैं. एंड बट जार जो है उन पर फायर का ऑर्डर दे देता है. नाउ these are few MCQ that we are going to be discussed. In which treaty was the seed of the first world war sown? तो कौन सी ऐसी ट्रीटी थी? So वर्सेल ट्रीटी, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी. Of course we are going to discuss this in our question answer session. I'm not going to reveal any of the answer. Which treaty was signed at the end of the first world war? Okay, it's a very simple one. Okay,
ट्रीटी ऑफ वर्सल, सीक्रेट ट्रीटी, लेटरल ट्रीटी, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। सो यहाँ पे इन लोग बेसिकली ये लोग ट्रीटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगेन थर्ड क्वेश्चन भी ट्रीटी पे ही है। विच प्रोविंस डिड फ्रांस लूज इन द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। ओके, सो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी में फ्रांस ने कौन से अपने एरियाज को गवाया था एंड उनको लॉस किया था। वेल यहाँ पे डेंसिंग प्रोविंसेस, एब्सेस एंड लॉरेंस प्रोविंसेस ऑफ द वेस्टर्न रसिया, वेस्ट रसिया एंड प्रोविंसेस ऑफ द इंग्लैंड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बहुत ही स्मॉल एंड स्वीट और सबसे हटके चैप्टर जो था ना, डेट इज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अगेन ये हमारी 100 ईयर्स पुरानी हिस्ट्री है एंड बहुत काम का है। एज अ कोई हिस्ट्री लविंग स्टूडेंट है जिसको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसके लिए तो ये लेसन बहुत ही सुपर्ब रहा है। एंड ये जितने भी अभी हम लोग ने क्वेश्चन रीड किया ना, ये सारे हम लोग अभी अपकमिंग क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको डिस्कस करने ही वाले हैं। सो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। वेल अब के लिए बाय एवरीवन एंड टेक केयर।